Hi everyone, today we have Harshit with us. So Harshit has secured All India rank 96 in GATE DA and All India rank 168 in GATE CS. So in this video we will mainly discuss about how to manage both GATE CSE and GATE DA preparation together. So since Harshit has secured top ranks in both the exams, so congratulations Harshit. Can you give a quick intro? Yeah. Hello everyone. My name is Harshit and Anjali Didi have mentioned my rank. I'm final year student in Vellore Institute of Technology, Bhopal. And yeah, I prepared for GATE with my final year. That's all. ओके दैट्स ग्रेट मतलब फाइनल ईयर के साथ तुमने गेट सी एस एंड गेट डी ए दोनों में टॉप रैंक लिया है एंड इसके साथ तुमने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी करी थी क्या? नहीं, मैंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने प्लेसमेंट छोड़ दी थी। आर यू कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन गेट प्रिपरेशन? या तो लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज मतलब तुमने कब सोचा कि गेट देना है एंड कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड मतलब ये शुरू से था कि गेट सी एस एंड गेट डी ए दोनों देने हैं या बाद में कुछ प्लान बना तुम्हारा? एक्चुअली 2023 के सितंबर में जब गेट डी लॉन्च हुआ था, सितंबर में आई गेस लॉन्च हुआ था। सो देन आई थॉट कि आई शुड मे बी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, and I took Go classes. And that time I prepared, I had covered like 60% of syllabus in like machine learning and the linear algebra part that was in CS, that was overlapping in CS and DA. So I couldn't complete the whole syllabus, but I completed like 60% syllabus, and with that I got a rank of 353 in third year Okay. with 61 marks. Okay. 61.33 marks. So after the result in March 2024, I decided that I will give CS exam also because the seats were limited in DA. I thought to prepare for both exams. Okay, so you started in September 2023. Yes. And like what was your primary focus? Your primary focus was GATE DA. Yeah, I wanted to study masters in AI for my masters. That's why I prepared for GATE. No, actually, in the when the fourth year started, when my fourth year started, I actually prepared primarily for the CS exam because it has more seats in it, and the DA exam is new, so comparatively the seats are less. So I prepared for um, primarily on CS, but I also gave time to DA so that I don't forget what I studied in third year, and I completed the syllabus also for both exams this time. ओके सो मेनली जो मैंने सुना है अभी तक मोस्ट ऑफ द पीपल सजेस्ट कि दोनों के लिए प्रिपेयर करना ठीक नहीं है मतलब सीएस का सिलेबस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू डीए। तो दोनों में अगर आप जगल Yeah, करोगे कंफ्यूज रहोगे कि सीएस करना है डीए करना है दोनों कर रहे हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुमने नहीं सोचा क्या इस बारे में कि दोनों करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है एंड सिंस योर प्राइमरी फोकस वाज गेट डीए उसके बाद सीएस का सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा सा आई गेस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड हो सकता है क्योंकि सीएस का सिलेबस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है उसको कंप्लीट करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो तुमने डीए को छोड़ के मतलब yeah. सीएस पे क्यों ऐसे आ गए तुम? सीएस पे स्विच तो बेसिकली मैंने इसलिए वही आपको रीजन बताया कि सीट्स की वजह से, बिकॉज आई वांटेड टू डू मास्टर्स एंड दैट वाज लाइक that was planned. So I started for CS, and yes, the completion of syllabus was very hectic. But actually, I completed the machine learning part in my third year only, so that gave me quite time. Also, the overlapping syllabus, it's like 50%, or I guess, yeah, I would say 50% of syllabus is overlap, like linear algebra part, DSA part is overlap, and the DBMS part is overlap. So first I completed the part that was overlapping with both subjects for DSA and DBMS, and then I started to switch on the more technical subjects like computer networks and operating systems. ओके तो ऑल्सो लाइक ने कॉलेज Yeah. के साथ प्रिपेयर किया है एंड दैट टू दोनों एग्जाम्स का सिलेबस खत्म किया है सो लाइक पीपल आर नॉट एबल टू मैनेज लाइक फॉर ओनली वन सब्जेक्ट ऑल्सो। तो थोड़ा बताओ कि कैसे बैलेंस किया एंड मेनली मतलब अगर तुम बता पाओ ऐसे कि
मतलब कितना टाइम दिया तुमने सब्जेक्ट्स को, हर एक सब्जेक्ट्स को, एंड कॉलेज के साथ कैसे मैनेज किया बेसिकली? Yeah. So, balancing my both exams was actually quite difficult. I used to give 4 to 5 hours for GATE CS and 1 to 2 hours in the evening to GATE DA. I used to watch the lectures, and already I completed some part of syllabus in the third year, so that actually helped a lot for like 4 or 5 months in the starting of the year. I That was my routine to like give 6 to 7 hours to watch lectures, and in the final in the October to January part, then I started giving the test. I didn't give any tests till now, so I started giving the topic wise test uh, and the subject wise test of the subject. So that went up for like my studies actually went from to like 10 hours at least Okay. in the month of October. Not like daily, but sometimes it used to extend to like 10 hours. So yeah. Also, my college was quite my what my college used to do is it completes like most of the part of the most classes till third year only, and for the final year, I just have to do the major project, and if I have some subjects remaining for the credits, then I have to do it. If I don't, then I don't have to attend any classes. Just the placement process and final year project goes on. And as I took exemption from the placement process, I just could prepare for the major project and the gate exam. So my preparation was my preparation actually I could only focus on one thing. So that was actually quite nice from my college part. Yeah. So Okay. that's how I managed to balance both exams. So And my syllabus was not even completed till the uh, I was like watching your lectures before 1 week of exam. I watched the whole searching part. I have watched in 1 week before the exams. Yeah. okay. So for GATE CSE, I think for practice आपने PYQs किए होंगे, and for DA Yes. what you did? Oh, the test series of Go classes and the AIMTs that sir gave, it was like 7 mock tests, and the 3 free one I couldn't give them. I just gave 5 mocks, and because my syllabus was also pending till the last, so I just gave I gave, but the topic wise test I gave all of them. Yeah, they have very nice questions. It's actually helped my preparation a lot because the GATE DA exam is new and you don't know what to expect. And um, actually, it was this time it was quite mathematical. Given the last time it was very, I would say easy only. Last time Right. this Last time it time, was difficult. comparatively, it was very easy last year. Yes, this time it was quite mathematical. So yeah, but I prepared for like the maths part from them, and they go in depth. So that also like helped a lot because you would need to know the concept to tackle those questions. You you can't just the brush up uh, the concepts and be like, okay, I would just give exam. You need to go in deep in some of the topics for like subspace of linear algebra and in machine learning part, SVM, etc. So as you mentioned about the test, so like topic wise and subject wise and mock test, GATE CSE and GATE DA टोटल मतलब कितने दिए होंगे, CS में भी और DA में भी तुमने? मैंने सीएस में एएमटीज दिए थे। एएमटी मैंने सारे दिए हैं तो हम्म। गेट सीएस में। डीए में मैं 5 ही दे पाया था, 7 थे टोटल, उसमें से 5 ही दे पाया था। बट सीएस के मैंने 5 के 5 दिए थे। और बट मैं उनके जो टेस्ट सीरीज में मॉक्स थे वो मैं पूरे बैठ के नहीं दे पाया था, बट उसमें से 2 मैंने ऐसी मतलब मैंने सबमिट कर दिया था, फिर जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने बैठ के सॉल्व किए थे फिर। या और मैंने गेटेड झील की भी, क्योंकि मैं 3 घंटे फिर वो पूरा बैठ नहीं पाता, तो मैंने ब्रेक ले लेके वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2 उनके। तो टोटल आई गेस मैंने 7 एग्जाम्स मैंने मॉक के उससे दिए वो क्लासेस से। और मैंने गेटेड झील की भी टेस्ट सीरीज खरीदी थी, उसके मैंने 3 मॉक दिए हैं और कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए हैं। दिस इज फॉर DA? ना ना, फॉर सीएस।
ओके। एनडीए में मैंने केवल 5 मॉक दिए थे, वो एआईएमटीज बस, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। हाँ ओके, नो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, नथिंग? नहीं नहीं, फुल मॉक में मैंने 5 दिए थे, बाकी जितने आर्ट वो टॉपिक वाइज टेस्ट थे वो मैंने सारे कवर कर लिए थे उससे। टॉपिक वाइज मैंने गो के सारे किए, बट टेस्ट मैंने फुल मॉक टेस्ट मैंने एआईएमटीज कवर की है। ओके। सीएस में मैंने वही केवल वो देखे थे, उनके क्वेश्चंस मैंने बैठ के सॉल्व किए थे, पूरा 3 घंटे नहीं बैठा था मैं मॉक देने। और मैंने डीए में सारे टॉपिक वाइज टेस्ट दिए थे, और जो एएमटीज हुए थे उसमें से 5 दिए थे। और जो 3 फ्री मॉक्स, मतलब फ्री नहीं सॉरी, जो टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है 3 मॉक्स, वो मैं नहीं दे पाया था। मैं केवल एएमटीज दिए थे मैंने 5। Okay, got it. So as you mentioned कि मतलब 5 to 7 hours you used to study along with the college. So even in college, if you don't have any course, you must have to do some projects or internships maybe. या So like, can you brief, like can you say in brief कि like क्या शेड्यूल होता था, सुबह से कब पढ़ते थे, कितने टाइम पढ़ते थे, फिर सारी चीजें मतलब कैसे मैनेज की? सो मैं बता रहा था, डेली शेड्यूल मेरा ये होता था, मैं 8 बजे यूजली उठने का ट्राई करता था। एंड एक स्ट्रेच में मैं 3 घंटे के लेक्चर्स देख रहा था, जो सीएस के। तो वो भी ये 2x पे लगा के या 3x पे लगा के, क्योंकि वो सचिन और दीपक से वो वीकली शेड्यूल भी भेजते हैं ना। तो हम्म। जितना मैं ट्राई कर पाता था, अगर उससे हो जाता है, अगर मैं सेम सब्जेक्ट लाइन लाइन से कर रहा हूँ, तो मैं ट्राई करता था, क्योंकि वो भी डेली का 4-5 आवर का कंटेंट ही देखने के लिए बोलते थे। हम्म। जो वीकली शेड्यूल आता है, तो उसमें मैं ट्राई करता था कि जितना वही 3 घंटे में अगर मैं 5 घंटे का लेक्चर कवर कर पा रहा हूँ उतना करता था। फिर मैं लेक्चर्स केवल देखता था, फिर मैं ब्रेक लेके फिर मैं एनोटेड लेक्चर्स गो थ्रू करता था। और अगर किसी सब्जेक्ट के नोट्स हैं ऑलरेडी, तो मैं बस जैसे वो सीएन के नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं पूरे ब्रीफ में, सीएन के हो गए, डीएसए के हो गए, टीओसी टीओसी के नहीं थे, और क्या बोलते हैं, कंपाइलर डिजाइन के लेक्चर्स नहीं थे, तो जिनके नहीं थे वो मैंने खुद से बनाए हैं। और मैथ्स का पार्ट तो मैंने पूरा लेक्चर खुद किया। जो 2-3 सब्जेक्ट थे जिनके ऑलरेडी अवेलेबल थे काफी ब्रीफ में, वो मैंने छोड़ दिए थे, उनके लेक्चर के नोट्स नहीं बनाए थे। आई जस्ट गो थ्रू देम, एंड उन्हीं से मैंने रिवाइज भी किया था एट द लास्ट। हाँ, नोट्स और कौन, मेरे समझी नहीं, मतलब कौन से नोट्स अवेलेबल थे? नोट्स एक्चुअली, मैं नाम नहीं याद मेरे को, बट करण एक के नोट्स की बात कर भैया रहे हाँ हाँ हाँ, करण भैया के हो? नोट्स। ओके, गॉट इट। उनके काफी वो पूरा जो सर ने पढ़ाया सेम पूरे लेक्चर्स, वो 200-300 पेजेस के रहते थे उनके। सो उन्हीं के लेक्चर्स से मैंने, उन्हीं के नोट्स से मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के गो थ्रू किया था। और जो सब्जेक्ट्स के नहीं थे, जैसे टीओसी के उन्होंने नहीं बनाए थे, उसमें बनाए होंगे पर उसमें दिया नहीं था, मैंने हम्म। उनके खुद बनाए थे। और फिर वही रहता था, फिर मैं अगर शाम को अगर मैं बैठ पा रहा हूँ तो मैं 4-5 बजे बैठता था। और जितनी देर वही अगर काम नहीं रहता और कोई, तब मैं लेक्चर्स देखता रहता जितना देख सकता था। वरना अगर कोई यूजली काम आ जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप का जैसे आपने बोला, तो इंटर्नशिप का काम अगर करना रहता है, या फिर मेरे को वही मेजर प्रोजेक्ट का काम करना तो पड़ेगा ही, तो मैं वही अगर मेरे को पास टाइम बचता था, तो मैं फिर शाम को 1-2 घंटे का यूजली ट्राई करता था कि स्क्वीज इन हो जाए जितना हो पा रहा है। ऐसे ही रहता था मेरा दिन फिर। ओके। एंड मतलब ये डीए के लिए नोट्स तुमने अपने बनाए थे सारे? डीए के नोट्स मैंने अपने बनाए थे, डीएस के भैया के अवेलेबल थे, तो पाइथन प्रोग्रामिंग के बनाए थे मैंने। ओके ओके, गॉट इट। एंड मतलब तुमने कम्प्लीटली लेक्चर्स ही फॉलो किए थे या कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ी थी? बुक्स मैंने नहीं पढ़ी। ओके ओके। एंड मतलब बेसिकली यही था, बाकी प्लेसमेंट का तो तुमने प्रिपेयर नहीं किया था साथ में? प्लेसमेंट का मैंने एकदम प्रिपेयर नहीं किया था। ओके। मैं सेकेंड ईयर में मैंने काफी कोडशिप किया, बट दैट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू लीव माय प्लेसमेंट, बिकॉज दैट वाज अ वेरी बिग डिसीजन, गिवन डीए में मेरी केवल रैंक थी। एंड इन द एंड आई वाज लाइक क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि वाज इट अ राइट डिसीजन टू लीव द प्लेसमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे साथ वाले लोग प्लेस हो रहे थे, एंड मेरे पास अभी एग्जाम फरवरी में है, और इधर प्लेसमेंट चलती है, लोग हो रहे हैं प्लेस। सो आई वाज very unsure कि should I have left the preparation, given the only backup was the third year rank, that was 353, so that was only backup. But
it all worked out, so I guess it's good. ओके। एंड वन मोर थिंग कि जैसे 6 to 7 hours ऐसे रोज पढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, मतलब अगर रोज नहीं, मैंने वो सो हाँ दैट आई वाज नहीं, आस्किंग कि ये कंसिस्टेंट था या ऐसे अप्स एंड डाउन्स थे तुम्हारे प्रिपरेशन में भी? कभी कभी रहते हैं अप्स एंड डाउन, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मशीन की तरह मैंने पढ़ाई है पूरा फिर 6-7 घंटे में, काफी टाइम मैं केवल प्रोक्रेस्टिनेट करूँ, मैंने एवरेज बोल दिया क्योंकि अगर मतलब महीने में मैं 20 to 25 डेज भी निकाल पा रहा हूँ ऐसे, अगर मैं राइट। कंसिस्टेंटली, सो दैट्स गुड ओनली। हाँ, लाइक द होल पॉइंट ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन वाज कि लोगों को ऐसा होता है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो इट इज द थिंग कि कंसिस्टेंसी ऐसे मेंटेन नहीं होती, मतलब आते हैं 1-2 दिन बीच में ऐसे। हाँ, दैट व्हाट आई वाज आस्किंग। सो या, दैट वाज इट। लाइक अगर तुम्हें अपने साइड से कुछ बताना हो, कुछ रिसोर्सेज अलग से, या फिर मतलब कोई भी टिप्स जो तुम्हें देनी हो, अगर कोई सीएस या डीए दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहा है साथ में, तो। अगर सी एस एंड डी ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई, तो आई वुड से कि ट्राई टू कवर द सिलेबस दैट इज कॉमन इन बोथ सब्जेक्ट्स, डीबीएमएस से स्टार्ट कर दो या फिर मैथ स्टार्ट कर दो। एंड ट्राई की अगर एक और चीज है कि अगर तुम्हारे कॉलेज के लास्ट ईयर में कुछ है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें करने पड़, जैसे मेरे कॉलेज में जून के बाद से मेरे सारे कोर्सेज बेसिकली क्लासेस वाले खत्म हो गए थे, बट जो अप्रैल मई का टाइम था उसमें मेरा कॉमन सब्जेक्ट था, एक ओएस हो गया और एक सीएन हो गया। तो दोनों तो नहीं, बट मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स एक सब्जेक्ट कॉलेज के उसी में ट्राई किया कि लेक्चर्स के साथ ही मैं खत्म करूँ की, और उसमें मेरा ग्रेड भी एस बना था उसकी वजह से। साइबर से सीजीपीए भी मेंटेन होगी और क्या बोलते हैं, कॉलेज में भी काफी हेल्प होगी और तुम्हारा एक सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट कॉमन आ रहा है गेट के पार्ट से, तो ट्राई टू कंप्लीट दैट। और अगर इन जनरल अगर तुम दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो ट्राई की तुम्हारा पहले जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो पहले तुम कंप्लीट कर लो, क्योंकि रिवाइज करते करते योर और दोज टॉपिक्स विल बिकम स्ट्रॉन्ग। एंड उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो आई वुड से कि मशीन लर्निंग के साथ पैरेलली कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वही सुबह फिर अगर तुम वैसे, और एक और चीज मैं बोलूंगा, ऐसे अगर तुम अगर पॉसिबल है तो एक इजी सब्जेक्ट सीएस में, क्योंकि मैं लेक्चर्स पैरेलली वॉच करता था, सो आई वुड से कि एक सब्जेक्ट ऐसा जो थोड़ा सा इजी, आई वुड से जैसे सीएस में डिजिटल लॉजिक डिजाइन है, सो वो थोड़ा सा इजी है आई वुड से कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, इट इट इज क्वाइट इजी। सो अगर तुम दो सब्जेक्ट पैरेलली चला रहे हो, दिन में दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो डीएलडी के साथ एमएल पेयर कर दो, तो दैट वुड बी लाइक वेरी बेनिफिशियल आई वुड से, कि दो ऐसे खतरनाक सब्जेक्ट साथ में मत, सो दैट्स इट। ओके। या Thank you, Harshit, for your time. Like, it was quite informative, whatever you shared. So, thank you. ओके, थैंक यू दीदी।